Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 15 Means of Communication. So, children, we have almost ended up with the chapter. Now it's time to finish up the exercise A, B, and C. So, children, I have made this video which is based on the exercise A, B, and C. So, let's start. So the first exercise is take the correct answers. So you have to take, there are three options and you have to take the correct options. So I will read it for you. The first one is, if we need to send a letter written by hand, we visit radio station, bank, or post office. So the correct answer is post office. We have already discussed in the chapter that we send letters. So what type of letters? Like postcards, inland letters, ठीक है, and there are many other letters also. So these are uh, this activity is done through post office. So you have to go to the post office and send the write the name, address, and pin code, and you have to stick the stamps also, and then send it. So we need if we need to send a letter written by hand, we visit the post office. Now here it is written a letter by hand. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहा है, अगर हैंड अपने हाथों से लिखा है तो वो पोस्ट ऑफिस से होगा. और इफ़ यू हैव रिटन द लेटर इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स यू हैव टाइप द लेटर ऑन द कंप्यूटर, देन यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल. ओके, यू हैव द ईमेल सर्विस ऑल्सो, यू कैन सेंड दैट लेटर थ्रू ईमेल. तो वो चीज़ यहाँ नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा बाय हैंड. नाउ सेकंड क्वेश्चन, if we need to listen to old speeches, we use a radio. Yes, the correct option is radio, because on radio sometimes you find the documentaries or the old speeches of the uh, which are kept by the All India Radio in their library. So sometimes they start playing the old speeches on the radio. So you can listen the old speeches on radio. Not in, you cannot listen in newspaper, you cannot listen in magazine, because it is not a audible device. Magazine and newspaper, you have to read the daily current affairs, the daily news on those papers and magazines. But if you want to listen, you will have to switch on the radio. Now next is third question, number 3. If the principal has to make an important announcement, she uses a mic. Yes, if the principal wants to make an announcement in the assembly, also in the classroom also, so she or he uses a mic. Now fourth one, to send an important message to a friend immediately, we use newspaper, no. Radio, no. It's mobile phone. ठीक है, you cannot send message through newspaper immediately or radio, but mobile phone you have to just dial the number and make a call to your friend. Now next question is fifth, to watch a live match we use a radio, television, or newspaper. The correct option is television, because on radio and newspaper you cannot watch a match. You can just see the highlights or the scores of the players on the newspaper the next day, and you can listen to the scores and commentary on the radio. But if you want to watch a live match, then you will be watching it on the television. So the correct option is television. So this finishes your exercise A. We come to exercise B, that is fill in the blanks. Now first one is, we dash our thoughts and feelings through means of communication. So the blank is share. Okay, the answer is share.
We share our thoughts and feelings through means of communication. Next one. When we send something by post, we must write the complete dash and also the dash. So the first answer is we must write the complete address and also the pin code. The first answer is address and the second blank is pin code. Okay. Because if you don't write the address, the letter won't go to anywhere, and also you have to write the pin code. Pin code is also the code of that area. What is pin code? Pin code is a code of the area which एरिया यू आर सेंडिंग दैट लेटर. ठीक है, जो जिस एरिया में आपने जिस एरिया का एड्रेस डाला है जहाँ पे उस लेटर को जाना है उस एरिया का एक कोड होता है, तो उसको बोलते हैं पिन कोड. और पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर. मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर का मतलब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो उनका एक इंडेक्स रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में वो एरिया किस नंबर पे आता है. जैसे कि मैं आपका रजिस्टर में अटेंडेंस रजिस्टर में आपका रोल नंबर देता हूँ ना, तो वैसे ही रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो एरिया का भी एक रोल नंबर होता है. उस रोल नंबर को वो लोग बोलते हैं पिन नंबर और पोस्टल इंडेक्स नंबर. ठीक है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट वन. द डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द answer is the telephone is the fastest means of communication. It is given in your book. The telephone is the fastest means of communication. Now next, dash carry articles about the happenings of the country every day. What is it? Answer is newspaper. So some children will be saying magazines are also, journals also, but they are not published or they are not sent, we don't read them every day. Okay, so newspaper comes to our house every day. So it in the question it is written carry articles about the happenings of the country every day. So magazines and journals don't come every day, newspaper comes every day. So answer is newspaper. Now next one is a dash machine is like a typewriter. I have also told you in the when I was explaining the chapter, it is fax machine, and the full form of fax machine is facsimile machine. ठीक है, you can write only fax machine. So fax machine is just like a typewriter, because in the typewriter also you type a letter, and in fax machine also you type a message, but you have to send it to the other person at different place. मतलब अगर आपको कोई लेटर टाइप करके दूसरे अपने फ्रेंड को भेजना है दूसरी जगह पर, तो आप फैक्स मशीन के थ्रू उसको भेज सकते हो. तो इट इज़ अ फैक्स मशीन इज़ ऑल्सो लाइक ए टाइपराइटर. नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज़ मैच द एब्रीविएशंस टू देयर फुल फॉर्म्स. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड द abbreviations are given, and on the right side the full forms are given. So you have to match them. So the first one is STD. So the full form of STD is subscriber trunk dialing. Okay, subscriber trunk dialing. Now these STD is not used nowadays. It was used some years before when there were local calls and STD calls. Actually लोकल कॉल वर मीन्स कि आप जिस जगह रहते हो. और मैंने जब आपको बताया था व्हाट इज़ टेलीफोन एक्सचेंज इन माय वीडियो, ठीक है, तो टेलीफोन एक्सचेंज से जितने भी एरिया के उस एरिया में जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे वो सब लोकल नेटवर्क में आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाहर अगर आपको अगर कॉल करनी है तो दैट वाज STD कॉल. फिर वो रेंज बढ़ती गई. ठीक है, तो वो रेंज बढ़ती गई और अराउंड फिर एक टाइम आया कि वो 200 किलोमीटर्स के रेडियस में, मतलब आप अगर जहाँ पे रह रहे हो तो उस जगह से 200 किलोमीटर के एरिया से आप कॉल कर सकते हो. वो लोकल कॉल में आता था.
और उसके बाहर अगर आपको कॉल करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली से 200 किलोमीटर्स मतलब, या दिल्ली के अंदर, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, वो तो बहुत छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू टेक द एग्ज़ाम्पल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के कैपिटल सिटी लाइक लखनऊ में रह रहे हो, ठीक है, तो लखनऊ से आप 200 किलोमीटर्स के एरिया तक आप उसको लोकल कॉल कहते थे, जो भी आप डायल करते थे। तो 200 किलोमीटर्स मतलब आप लखनऊ से कानपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, इलाहाबाद और इस तरह के जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो सब आप कॉल कर सकते थे उनमें लोकल कॉल रेट से, ठीक है। उसके बाद उसके आगे अगर आपको कॉल करनी थी, लाइक लखनऊ से आपको भोपाल कॉल करनी थी, या लखनऊ से आपको मुंबई बात करनी थी, तो वो एसटीडी कॉल लगती थी, मींस उसका रेट हाई होता था, उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, ठीक है। और अगर आपको कंट्री से बाहर कॉल करनी होती थी, तो उसको बोलते थे आईएसडी कॉलिंग। तो वो दूसरी चीज़ है। अभी आप सिर्फ कंट्री के अंदर देखो, कंट्री के अंदर होती थी लोकल एंड एसटीडी कॉलिंग। एसटीडी को बोलते थे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नाउ दिस फैसिलिटी हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम आवर कंट्री बिकॉज व्हेन some companies like Reliance came into in this field of communication, तो उन्होंने सारा सब कुछ फ्री कर दिया, और फ्री करने के बाद ऑल ओवर इंडिया लोकल कॉलिंग बना दिया, ठीक है। तो अब एसटीडी का कोई यूज़ नहीं रह गया। तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बात करेंगे तो आप लोकल कॉल रेट से बात करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया इज़ नाउ ए लोकल नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जीपीओ। जीपीओ इज़ जनरल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इट इज़ जनरल पोस्ट ऑफिस, इट इज़ वन इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में एक जनरल पोस्ट ऑफिस होता है और उससे कनेक्टेड कई सारे सबऑर्डिनेट पोस्ट ऑफिस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पीसीओ। व्हाट इज़ पीसीओ? इट इज़ पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है, पब्लिक कॉल ऑफिस। नाउ पीसीओ का यूज़ होता था आज से कई साल पहले, जब हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स या टेलीफोन्स नहीं होते थे घर पे। तो लोग क्या करते थे, जब उनको कहीं बात करनी होती थी तो वो शॉप होती थी, एक शॉप में जाते थे, तो वहाँ पे एक टेलीफ़ोन रखा रहता था। तो उस टेलीफ़ोन के आपको पैसे देने होते थे कॉल करने के लिए, तो उसको बोलते थे पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। तो वो एक सर्विस थी जो कि आपको मिलती थी मार्केट में। आपको किसी से बात करनी है तो आप वहाँ पर जाइए, फ़ोन कॉल लगाइए अपने फ्रेंड को और बात करिए। नाउ एवरीबडी इन द कंट्री इज़ नाउ हैविंग अ फ़ोन, अ टेलीफोन, इंस्टेड नाउ दे आर हैविंग अ मोबाइल फ़ोन। नाउ एवरीवन इज़ नाउ द यूज़र्स ऑफ इंटरनेट ऑल्सो। अब सबके पास इंटरनेट भी है, मोबाइल फ़ोन तो छोड़ दो, अब इंटरनेट भी है सबके पास। सो द कंट्री इज़ in a very advanced position now. Now the next one is fax, fax, fax machine. तो full form is facsimile machine, okay. fax machine का भी अभी थोड़ा बहुत यूज़ होता है कहीं कहीं पर, लेकिन ये भी these are all outdated technologies। ये कई साल पहले इनका यूज़ होता था, जब आपको लेटर टाइप करके किसी को भेजना होता था इन लाइक अ हार्ड कॉपी मतलब एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको दूसरे इंसान को भेजना है दूसरी जगह पर, तो आप फैक्स मशीन का यूज़ करते थे। उसमें आप फैक्स मशीन में क्या होता था, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पहले लेटर टाइप करते थे, उसके बाद जिसको सेंड करना होता था, सेंड करने के लिए आप उसमें उसका नंबर डालते थे, फ़ोन नंबर जिसको सेंड करना है, और सेंड कर देते थे। तो जिसके फ़ोन नंबर डालोगे तो उसके पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए, और उसके पास फैक्स मशीन होगी तो उसके फैक्स मशीन से वो लेटर प्रिंट होकर निकल आएगा, तो वो मैसेज रीड कर सकता था। तो ये काम था फैक्स मशीन का। नाउ इट इज़ नाउ ईमेल। नाउ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स यू हैव टू टाइप अ लेटर ऑन द कंप्यूटर एंड यू हैव टू सेंड इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ठीक है, थ्रू इंटरनेट यू कैन से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से सर्विस प्रोवाइडर्स of email are like
Yahoo, Gmail. The most common used is Gmail. The other one is Rediffmail. The other one is in.com. The other one is india.com एंड hotmail.com. बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो कौन सा यूज़ होता है, gmail.com. नाउ ईमेल का भी बहुत लोग कम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज मोस्टली इन द ऑफिसेस, किसी ऑफिस में यूज़ होता है जहाँ पर सिर्फ ईमेल से काम होता है. बाकी तो लोग ज़्यादातर अब मैसेज अपने टाइप करते हैं किसके थ्रू. देर आर मैनी सर्विसेज एंड एप्स नाउ इन टुडेज़ वर्ल्ड, लाइक व्हाट्सएप है, ठीक है, मैसेंजर सर्विसेज हैं, कई सारे मैसेंजर्स होते हैं. तो उसके थ्रू आप तुरंत उस पर मैसेज टाइप करते हो और सेंड कर देते हो. आपको कंप्यूटर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ईमेल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है. बस मोबाइल उठाया, ऐप खोला, मैसेज टाइप किया और सेंड किया. कितना ईजी हो गया है हर चीज़. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब आउटडेटेड होती चली जा रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं. सो चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान लो. ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, लाइक एसटीडी, पीसीओ, वैक्स. और so children, I end up my video. I will write down the questions for you and will send it on the group. So if you have any problem, please let me know on the class group. So thank you children.